I think DK is someone who is new. DN. Um, okay. Rest of you, I guess you are um old students only. Oh, no, sure. So DN, I would great. So DN, I would request you to go to our previous lectures and look into the classes. But for everyone's convenience, I'll just recap a little bit like the important concepts that we have seen in the last class. Basically, we have only learned about the divisibility rules. So the three like four at the end of the divisibility rule, we learned about four main rules which will be required for today's numericals as well. So first we learned this: if a number is divisible um, by another number, then it will be divisible by each of its factors as well. So we have seen the examples in this particular, considering this as also, right? And then we also saw this particular rule, which is if there is two given numbers and which is divisible by another number, then the difference of these number will also be divisible by that number. And this is something which we saw in another concept previously. So apart from that, main like there are few divisibility rule which are used on a number of sums. First is this one, the divisibility of 11, which is the difference between the sum. We have to like add the sum of the odd places as well as the even places, and then we have to find the difference between that particular um, those two particular sums. Okay, so that's the divisibility of 11. Apart from that, another important will be for this today's numerical will be divisibility of 9. If the sum of all the digits of the number is divisible by 9, then the number itself is also divisible by 9. So basically all the sums of the digit, which is, if we consider this particular digit 684, as we have seen in the previous class, so we have to take out the sum of all of it. So 6 plus 8 plus 4, so it was 18, right? So 18, as we know, 9 into 2 is again 18. So definitely the entire 684 will also be divisible by 9. So this was about it. Apart from that, there were very basic divisibility rules like 2, 3, 4, 5, which were very easy. Like 5, if any number has 0 and 5 at its end, so that number will be divisible by 5. For 4, it was if a number with 3 or more digit is divisible by 4, if the last two digit, basically the ones place and the tens place, is divisible by 4, then the entire number, irrespective of how big the number is, even if the number is a 10 digit number, if the last two digits are like the ones place and the twos place and the tens place will be divisible by 4, then the entire number will also be divisible by 4. Okay, apart from that, we have seen three's divisibility, which is the sum of all the numbers, which is similar to 9. Basically, we can also say like 9 and 3 are similar. Divisibility rule of 9 and 3 are similar because 3, as we know, like 9 is also a multiple of 3 only, right? So it's the same divisibility rule that we follow for both of these numbers. So all of the numbers, so we'll be adding all of the digits, and then we'll see if that particular digit is divisible by 3, then the entire number, irrespective how big the number is, will be divisible by 3 as well. And 2, again, 2 is very easy, which is 0, like any number, like if we see the end, the ones place in any numbers, ones place has a digit which is multiple of 2, which is 0, 2, 4, 6, anyhow, right? So that entire number will be divisible by 2. So all of these we have seen already. And another major, like another important divisibility rule is of 7, which is unit place. We have to consider the unit place number, and we will twice, we will multiply that number with 2. Basically, we'll find the twice of that number. Then the rest of the digit that is kind of there in that particular entire digit, we will kind of subtract the entire twice of the ones place, and then we'll get a value, and we'll see if that value is divisible by 7, then that entire number will also be divisible by 7.
So that is how we'll find out 7's divisibility. So basically वंस प्लेस का जो नंबर होगा उसको हम लोग उसका ट्वाइस निकालेंगे. लाइक अगर 8 है जहां आप देख पा रहे हो, तो 8 का ट्वाइस 2 into 8, तो उसको निकालेंगे. फिर उसको हम लोग बाकी के जो नंबर रह रहे हैं इधर, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर इधर 65 है, तो ये अगर 165 भी रहता तो उसको क्या करते हम लोग, एंटायर जो भी नंबर बच जा रहा है वो नंबर से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. करने के बाद हम लोग जो नंबर हम लोगों को मिलेगा, वो नंबर जैसे इधर हम लोगों को 49 मिला था, राइट. तो वो 49 हम लोगों को पता है 7 into 7 is 49, राइट. तो डेफिनेटली वो पूरा नंबर भी आपको फिर डिविजिबिलिटी लाइक पूरा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है 7 के जो रूल है उसमें. ठीक है, यही सारे हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज आर लाइक इम्पोर्टेंट वंस. फिर 88 का एक होता है, 88 का जो कि आपका आपका 8 से एंड लाइक 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करेगा और 7 का भी. और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है. 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप देख देख पाओगे, इधर ही है, विच इज सिमिलर टू अगेन आपका 4 के तरह ही होगा ये भी. तो ये 4 डिजिट नंबर आप कंसिडर कीजिए, या फिर अगर उससे भी बड़ा कोई डिजिट का नंबर है, उसका लास्ट 3 डिजिट. जैसे 4 के टाइम में क्या हो रहा था, लास्ट 2 डिजिट हम लोग देख रहे थे, राइट. वी वर सीइंग द लास्ट 2 डिजिट 4 के डिविजिबिलिटी रूल में, कि लास्ट 2 डिजिट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस में जो 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है. पर 8 के टाइम में क्योंकि वो थोड़ा सा लाइक इंटू 2, और मतलब 4 का लाइक ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ 4 इज दिस वन. सो बेसिकली इधर क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर सम यू कैन सी 512 लाइक 512 विल कंसिडर. तो 512 हम लोग देखेंगे कि वो अगर 8 से डिविजिबल होता है तो एंटायर नंबर, पूरा कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो 88 का लाइक जो भी आपका 88 का जो होता है, 88 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग को दो चेक पॉइंट्स है. एक है कि वो नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करेगा, विच इज सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, difference between the sum of even and sum of odd, that is 11, right. And 8 का divisibility rule भी follow करता है. okay, so this is about it. And कोई question है अभी तक, like किसी का कोई question? I guess not. Okay, no questions as of now. Okay, now what we'll do is we will move to the sum that we were supposed to do today. okay, जो कि sum हम लोग को last day बाकी रह गया था, 5 नंबर 5. आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन. ऊपर का जो भी है वो आप मतलब मत देखिए. हेलो, या is it visible to everyone? Fifth sum? Yes, I guess. Okay, great. So I would want you all to attempt it first. It would just take 10 seconds of yours. Like एक बार ट्राई कीजिए, like अप्रोच, अपने से अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, then I'll help. Okay.
जो भी ट्राई कर रहे हो आप लोग थोड़ा सा सम लिख लीजिए, इधर है। आई जस्ट या एनीवन लाइक हैव एनीवन ट्राइड द न्यूमेरिकल? किसी को आंसर मिला? Okay, so since we have started the class quite late, okay, yeah, first sum is 2 and 8. Okay, right. 0 and 9. Right, okay. Only one. Shubham is, I guess, only Shubham has tried, and other people have not, or they are confused between what to do or not. So I'll just solve the numerical quickly, okay? So यहाँ पे क्या क्या sum थे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है एक बार। तो जो मिसिंग नंबर थे which was, अरे यार सॉरी, ओके, मिसिंग नंबर आपका ये था 7, 2, 4। और 3 का डिविजिबिलिटी में क्या होता था, सारे नंबर का हम लोग सम निकालते थे, है ना। तो सारे नंबर का अगर हम लोग सम निकाल रहे हैं तो पहले तो हम लोगों के पास ये नंबर है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते अभी के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास है उसका सबका सम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 + 4, ठीक है। सबका सम निकालने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा 19, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग नंबर फाइंड करने के टाइम में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है उसका उन सबका सम निकालने के बाद वी हैव टू सबट्रैक्ट इट, ओके। सबट्रैक्ट करना पड़ता है जिसका डिविजिबिलिटी रूल, लाइक अभी जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को दिया गया है विच इज 3 का, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 बोला गया है, राइट। तो अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल है तो 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, तो विल सी जो भी 3 के, मतलब ये 19 है, तो 19 के जो भी ग्रेटर देन 3 मल्टीपल्स होंगे उन सबको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 जो कि ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 19, विच इज आपका 21 आ जाता है, फिर आपका 24 हो जाता है, 27 होता है, 30 होता है, तो ये मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ होता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एक्स लाइक ग्रेटर देन 19 जो भी मल्टीपल्स होते हैं उसके साथ हम लोग माइनस करते हैं। तो ये हो गया 19, हाँ, दिस इज 19, देन विल 24 - 19, फिर 27 - 19, 30 - 19। तो ये करने में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जब करेंगे हम लोगों को मिलेगा 2, 9, 19, 20, 21, दिस वन विल गेट एज 5, दिस वन विल गेट एज आपका 19, 20, हाँ ये 8 होगा, हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 11 आई गेस, हाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू क्लियर, क्लियर हो रहा है ना, राइट। ओके ओके सेज, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफरेंस मिल जाएगा 2, 5, 8 एंड 11। तो अब क्या बोला गया था कि हम लोगों को कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हम लोगों को डिजिट फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट मिल गया हम लोगों को 2, और ग्रेटेस्ट में हम लोग 11 नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स सिंगल डिजिट प्लेस, तो यहाँ पे तो 11 नहीं बैठा मतलब यहाँ पे 11 नहीं यूज कर पाएंगे, तो 8 हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका स्मॉल, और ये हो गया आपका ग्रेटर नंबर। सो बेसिकली ठीक है, क्लियर है, हाँ ओके ग्रेट। तो या शुभम्स आंसर्स आर एब्सोल्युटली राइट, सो यू कैन कंसिडर दोज लाइक शुभम के आंसर्स ही आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। तो फर्स्ट इज 2 and 8, एंड सेकेंड वाले में शुभम इज राइट, इट वुड बी 0 and
9। आप लोग क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। 4, 7, 6, 5, गैप इज आफ्टर 5 एंड देन 2। तो बेसिकली आपको 10 के प्लेस में जो भी मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना पड़ेगा, which will the entire number will be again divisible by 3। ठीक है, ये आप थोड़ा सा घर पे कर लेना क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आई गेस। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कर लेना और आंसर विल बी 0 and 9 ओनली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगेन बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका यही है, आपका कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स और ये सब है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लाइक मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका आंसर्स आप बता सकते हो लाइक चैट बॉक्स में, तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाएंगे क्योंकि ये पुराने कॉन्सेप्ट है। तो आई होप सबको क्लियर ही होंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 9, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 9 बेसिकली। जिन जिन को मतलब याद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन जस्ट मतलब आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, लिख दीजिए बेसिकली चैट बॉक्स में। थर्टी सिक्स के बाद नेक्स्ट वाला 7 is 4। ओके, ओके। मीनवाइल फ्यू पीपल आर ट्राइंग, और जो जिन लोग ट्राई नहीं कर रहे उन लोगों के लिए आई शो यू द सोल्यूशन। देयर इज नथिंग टू लाइक काइंड ऑफ worry about. So I'll just show you the solutions quickly. मल्टीपल्स ऑफ 3 आप लोगों को पता है कि 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। सो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे 4 के सिमिलर वे में, 9 का सिमिलर वे में, और उनके सारे के बीच में जो भी कॉमन मल्टीपल है उसको हम लोग को डिटरमाइन करना है। एंड सिमिलर वे में 20, 28 के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको डिटरमाइन करना है। 15 और 25 के बीच में भी सेम। ठीक है, okay, people are trying, still trying. Okay, great. So I'll just show you the for ये वाले मतलब 6 वाला का आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, yeah, okay. So I hope it's visible. आप देख पा रहे हो कि 3 के जितने भी multiples है, you can see it here only. 4 के भी you can see it, okay. And so the common multiples between all of these are, इधर आपका 36 is one of, like a lot of people mention 36. Yes, 36 it is. Apart from that 72 will also be a common multiple. ठीक है, उसके बाद 108 भी होता है। उसके बाद so on, काफी सारे, उसके बाद काफी सारे like kind of multiples आ ही जाते हैं। Okay, should I consider 1 as a common factor? Yes, why not?
Yes, of course, one will be a common factor, right? That's how we determine even number, odd number, like prime number, composite number, ऐसे ही determine होता है. तो one को हमेशा factors में include करके ही चलना पड़ेगा. So that's how it works. So यहाँ पे जैसे कि आपका next sum में आपको 20 और 28 के बीच में जो भी factors थे उसको determine करना पड़ रहा था. तो which is 20 के factors है 1, 2, 4, 5 is there, 10 is there, 20 is there. So all of these are, तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन है बेसिकली, तो इधर आप देख पा रहे हो कि ये है, दिस वन इज देयर, वन इज कॉमन बिटवीन, ऑफ कोर्स कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ इट, देन 28 भी कॉमन है और 24 इज ऑल्सो कॉमन. सो अगेन गॉट इट. तो यहाँ पे आपका 1 हो गया और 5 भी हो गया, तो दिस इज देयर. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नंबर 8 वाला सम जो था, विच वाज ये तीनों लाइक 4, 8, 12 और 5, 15 और 25 के बीच में कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 4, 8, 12 में 4 तक जो भी उनका फैक्टर्स होता है वो कंसिडर कर लिया आपने, 8 का कंसिडर कर लिया और 12 का भी कंसिडर कर लिया. तो यहाँ पे आपका 1 तो होगा ही, राइट. उसके बाद आपका 4 भी होगा, सॉरी हाँ 4 तो होगा और 2 भी होगा. ओके, दिस 4 is also there and 2 is also there. Got it? Then 5, 15 और 25 में similar way में आपका 1 और 5 ही आएगा. Okay, 1 is there between common between all of these three numbers, and then 5 is also there. Okay, got it? Then the next sum was okay. The next sum was a number which is divisible by both 5 and 12, and by which other number will that number be always divisible. ठीक है. कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, और by which other number will that number also will be divisible, और कौन सा नंबर होगा जिनके साथ वो डिविजिबल हो सकता है. Similar way में last sum was a number which is divisible by 2, 12, and by what other number will that number be divisible. पुराने कॉन्सेप्ट्स है ये, लाइक आ जाना चाहिए. इफ एनीवन इज ट्राइंग. Number 9. Okay, 9. Poonam Yadav answered 2. Okay. Okay, no problem. So I'll just show you again the solution quickly. Okay. So 5 के जो भी फैक्टर्स है आप कंसिडर कर लीजिए, उसके साथ 12 के जो फैक्टर्स है आप कंसिडर कर लीजिए. So like we know 5 and 12 is co-prime to each other as well. Okay. So यहाँ पे okay. Okay, so 5 and 12 is co-prime to each other as we know. Now we know that if a number is divisible by two co-primes, then it is also a known fact that it will be divisible by its product as well. Like co-prime का जो आपका कॉन्सेप्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर वो एक नंबर है जो कि ये दो co-prime के साथ divisible है, तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट के साथ भी divisible होगा. So we can see like the product of 5 and 12 is 60, right? So 60 is a number which will be divisible by both of those particular numbers as well. So therefore, the number that is divisible by both 5 and 12, it will be divisible by 60 as well. So 60 ही होगा आंसर. Okay. टू क्यों बता रहे हैं आप लोग? And which answer you are considering as 2? Sejal and others like Shubham. Okay, I'll just repeat the sum again. I guess you guys mistook the sum to something else. So sum ये था कि ये कोप्राइम का कॉन्सेप्ट का सम है. ठीक है. कोप्राइम का जो आपका कॉन्सेप्ट थे कि इफ दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर ना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पी क्यू करके हम लोग समझे थे. तो
if a number is divisible by both 5 and 12, by which other number that number will always be divisible, और कौन से number के साथ that number will always be divisible. Okay, so this was the sum and the solution. As you could see, was factors पहले निकालिए आप 5 का, फिर 12 का भी factors आप निकाल लिए, फिर उसके बाद you can see like 5 and 12 are co-prime to each other because उनका जो product होता है that is also a number which is like kind of divisible by themselves as well. तो 60 ही होगा ऐसा number. Okay, yeah, 10th is right. So 10th का वही था कि if a given number is divisible by 12, then we need to find the other number that will be divisible by like 12. So basically क्या होगा, we know that the number will जो number like 12 के जितने भी multiples है, जितने भी उनका factors है, basically 12 के जितने भी factors है, तो वो सारे factors आपका divisibility rule उनका follow करेगा. So then all the numbers will be divisible by all of its factors as well. So this is also a known fact. तो यहाँ पे आपका सारे नंबर्स वही होंगे 12 तक के जितने लाइक 12 के जितने भी फैक्टर्स है, वो सारे नंबर will be that number that will be divisible by 12 itself. Okay, got it. Then these were very like old concepts, so we'll dive into the new numericals. Okay, quickly we'll do those numericals. So first was how many 3-digit number are divisible by 5 and 9. कितने सारे 3-digit number will be divisible by 5 and 9. Is the numerical like जो numerical दिया गया है वो आपको clear है? Like 3 digit आपको पता है 1 0 100 से start होता है, फिर आपका 99 999 सॉरी 999 999 पे खत्म होता है, राइट? कितने सारे 3-digit नंबर आपके 5 और 9 के साथ डिविजिबल होगा? कोई ट्राई कर रहा है? yes or no लिख लीजिए. If anyone is trying, so we can wait for few seconds and then we can move on to the solution. Yes, okay, Astik, Shubham, you can try. So I'll just 'जो ट्राई कर रहे हैं well and good. So okay, yes, D, you're saying D, Astik? Okay, 180 and आप लोग D बोल रहे हो. Okay, so there is some calculation error. Astik और सेजल, आप दोनों ने ट्राई किया, तो प्लीज look into it. Probably you have done some calculation error, so I'll just quickly do it for you. Okay, तो 3-digit नंबर जो कि आपका 9 और 5 के साथ डिविजिबल है. So we'll see it right now. 3 again. Three digits, okay? डिवी लिख रही हूँ, ठीक है? डिविजिबल बाय 5 प्लस 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 9. और यहाँ पे एक चीज होगा, आप अगर न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देखेंगे, आपको इधर दिखेगा कि 5 और 9 दिया गया था, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पे 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 5, उसके साथ 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 9, उसको ऐड करना पड़ेगा और हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3-digit नंबर डिविजिबल
बाय 5 एंड 9, क्योंकि ये हम लोगों को मतलब ये हम लोगों को बोला नहीं गया है, बस और बोला गया है, राइट, 5 और 9। तो शायद आस्तिक और सेजल आप दोनों ने यही यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, जस्ट रीचेक इट वंस। तो आई जस्ट डू इट क्विकली। एपी का फॉर्मूला था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो एपी के फॉर्मूला में हम लोग पहले ये वाला कंसिडर करते हैं, 3 डिजिट नंबर, दिस वन 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। तो डिफरेंस होगा आपका 5 एन, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो होता है, दैट विल बी आपका 995। तो आपका okay, once again show the options. Yes, I'll show you the options once again. Ask it. It was 260, 280, 200 and 180. Okay. So अभी क्या करना पड़ता है, एपी के जो फॉर्मूला थे उसमें आप B you're saying, which is 280. Okay, again थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन एरर है, अगेन चेक इट वंस। ओके, आई जस्ट डू इट। 995 हो गया, ठीक है, और 100 प्लस N1 माइनस, क्योंकि आपको 3 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल का ये आपका जो सीरीज होगा ना, वो होगा 100 से स्टार्ट, है ना, 100 से स्टार्ट होगा, फिर 105 होगा, फिर 115 होगा। वी हैव सीन इट इन द लास्ट क्लास एज वेल। ठीक है, ये जाएगा आपका टिल 995 तक, क्योंकि 3 डिजिट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले जो 95 है, 90 है, 5 के डिविजिबिलिटी में, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में जो भी नंबर्स आते हैं 2 डिजिट नंबर, वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इधर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, दैट आंसर विल बी N1 जो आएगा आपका, N1 विल बी 180। ठीक है, उसके बाद आपको अभी 9 का निकालना पड़ेगा, 3 डिजिट 9 वाला। डिविजिबल बाय 9, इनका क्या होगा, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, दैट इज 108, 118, एंड ये जाएगा आपका टिल 999 तक, है ना। तो अभी इसका एपी क्या निकलेगा आपका, 999, which is the last digit, that is the nth term, nth term। तो nth term के साथ हम लोग this one, like the first term plus P1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। अभी 9 was the difference, right? तो अभी N1 का जो वैल्यू आएगा, that sorry P1 का जो वैल्यू आएगा, that will be आपका 100। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। I'm just erasing the entire thing, okay? अभी आपको हम लोगों को मिल गया था N1 was equal to 180 और P1 was equal to 100। अभी हम लोगों को निकालना पड़ेगा आपका 9 and 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 and 5। तो 9 and 5 मतलब बेसिकली 45 द एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब क्या होगा, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 45, इसमें आ जाएगा आपका 135, फिर 180, ऐसे कर करके फिर आपका 990 तक जाएगा, विच इज द nth टर्म इन द एंटायर सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अभी एपी इसका क्या निकलेगा, 990 is equal to 135, which is the first term, प्लस आपका इधर हम लोग Q1 पकड़ लेते हैं -1, एंड आपका डिफरेंस होगा 45।
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, है ना, जो हम लोगों का 5 की डिविजिबिलिटी में 5 आ रहा था, 9 वाले में 9, 45 वाले में 45 ऑफ कोर्स। तो अभी इसका आएगा आपका Q1 विल बी इक्वल टू और ये आएगा 20, ठीक है। तो नाउ 3 digit number which is divisible by 5 और 9 is आपका सिर्फ 5 वाला कंसिडर करेंगे प्लस सिर्फ 9 वाला कंसिडर करेंगे, उसके बाद दिस वन विल कंसिडर, ठीक है। तो पहले होगा आपका 180 जो कि N1 था, which is only 5, like 3-digit number which is divisible only by 5, then 3-digit number which is divisible, like 3-digit numbers which are divisible only by 9, which are 100 numbers, and then 3-digit numbers which are divisible both by 5 and 9, which is basically 45. तो उनके साथ हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोग को और वाला टर्म था ना, 5 और 9 था, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 260. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. दिस इज द राइट आंसर. ओके, तो शायद यही पे आप लोग ओके 280 जिन लोगों ने लाइक 180 बोला था उन लोगों ने शायद टिल 5 करके छोड़ दिया होगा, और जिन्होंने लाइक आस्तिक ने बताया था 280 तो उन्होंने 5 एंड 9 वाला चीज कंसिडर नहीं किया होगा, तो यहाँ पे गलती हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे जाते हैं. यहाँ पे तो बोला गया है दिस इज द सम. अभी इसका इफ दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 88 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू बी. मतलब ए और बी आप निकाल लिए, फिर उसके बाद आप उसका मल्टीप्लाई करके उसका आंसर, मतलब आंसर इन सब में कुछ एक होगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी. हाँ, just try it once guys. 52 हो रहा है, ओके. Divisibility rule of 88 was वो ये entire number should satisfy the divisibility of 8 and 11. मैं audible हूँ ना? 8 और 11 का divisibility rule दोनों ही नंबर, ये पूरा नंबर like kind of follow करेगा, ठीक है. Is anyone trying? I guess Shubham, Astik, Sejal must be trying. So I will just quickly. Okay, cool. तो इसमें कुछ चीटिंग का बात तो है नहीं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग जिन लोगों को लाइक जिन लोग नहीं कर रहे हो, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे के चलती हूँ, ठीक है. दिस वाज द नंबर राइट, 8-1 और 8A51 और आपका था 46B. 6B था, ये क्या है. दिस वाज द एंटायर नंबर. तो इसको बोला गया है दिस इज डिविजिबल बाय 88. तो ये आपका 8 के डिविजिबिलिटी एंड 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा. अरे माय स्क्रीन इज विजिबल राइट?
is visible? Okay, great. Okay. So sorry. Okay, guys. ठीक है. Okay. एक. So this was the sum 8A5146B. Eight A5146B. This was the number which is divisible by 88. So ये entire number, as we know by the divisibility rule of 88, ये entire number will be divisible by 8 and 11. ठीक है. अभी क्या होगा? 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों को याद है कि लास्ट 3 डिजिट को ऐड करना, लाइक लास्ट 3 डिजिट should be kind of multiply, like should be kind of divisible by 8. तो ये एक हिंट है कि लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8. This should be divisible. Is anyone else trying? Okay. Okay. Answer is incorrect. Okay, no problem. So, if the entire number, like entire this last 3 digits, will be divisible by 8, then B को 4 होना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर 4 6 4 होगा, so this is the only possibility जहां पे अगर B 4 होगा, तो ये पूरा entire number will be divisible by 8. क्योंकि you can see 42 और आपका फिर 20, फिर आपका इधर 8 के साथ अगर आप डिविजन कर रहे हो, so this will be 464 divisible by 8, it would be 58. Okay, तो this was it, right? तो अभी इतना इतना पे खत्म नहीं हो जाता, तो बहुत ही इजी हो जाता फिर. तो अभी आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को, फिर 8 का तो एक क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया. 8 पे हम लोगों को बी मिल गया. बी का हम लोगों को पता चल गया कि बी इज विल बी 4. ठीक है. अब 11 को यूज करके हम लोग ए वाला निकालेंगे. तो अब 11 का क्या होता है, विच इज डिफरेंस बिटवीन आपका इवन नंबर के जो भी प्लेसेस में है और ऑड नंबर के जो भी प्लेसेस में है. तो अभी क्लियरली इस नंबर को फिर से लिख लेते हैं. 8A. वाओ, थोड़ा क्लियरली लिखते हैं. ठीक है. 8A5146B. बी तो 4 है. तो अब ये हो गया 1 2, दिस इज 1 प्लेस, 2 3 4 5 6 और 7 प्लेस. तो अभी इवन प्लेस में क्या क्या है?
आपका 8 है, 8 है ना, सॉरी ऑड प्लेस में 8 इज देयर, 5 इज देयर, 8 प्लस, ठीक है, प्लस अभी से करते रहते हैं, फिर 4 इज देयर इन फिफ्थ, ये जगह फिफ्थ प्लेस में इज 4, एंड सेवेंथ प्लेस में भी आपका बी है, तो बी तो आपको मिल गया हम लोगों को, बी इज देयर, तो बी 4 ही है, तो ये मिल गया। फिर अभी इवन नंबर, इवन प्लेस में देख लेते हैं क्या क्या है। इवन प्लेस में है आपका ए प्लस 1 प्लस 6, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हो गया, ये आपका 14 माइनस ए आएगा, एंड दिस एंटायर थिंग शुड बी डिविजिबल बाय, आपका 11 के साथ ये डिविजिबल होना चाहिए, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो इफ दिस नीड्स टू बी डिविजिबल बाय 11, तो इधर से हम लोग को समझ आ रहा है 11 से डिविजिबल होने के लिए इधर 11 होना चाहिए या 22, तो यहाँ पे 22 आने का कोई लाइक काइंड ऑफ संभावना नहीं है, तो 11 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ए को 3 होना पड़ेगा। If the entire this entire thing 14 minus a needs to be divisible by 11, तो 11 को 3 होना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वैल्यू मतलब अगर हम लोग 22 लाने की कोशिश करेंगे तो वो तो माइनस पे वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो फिर ये आपका 11 आएगा, तभी आपका 11 आएगा, तो 11 विल बी डिविजिबल बाय डेफिनेटली 11, तो ए आपका आ गया 3 और बी आ गया आपका 4। तो अब क्या था वहां पे, क्या फाइंड आउट करना था, a इंटू बी, तो a इंटू बी विल बी 12, तो आंसर विल बी 12। तो ये हो गया आपका, दिस वन विल बी द आंसर, गॉट इट। 12 and 32, शुभम how it will be 32? Probably it could be that I am wrong, और आप भी 32 कहाँ से आएगा शुभम, और 32 अगर कहीं से आएगा भी पर ऑप्शन में, तो 32 है ही नहीं, तो 12 ही होगा। ओके, मिस टाइप हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हो गया। ये इजी था। अभी नेक्स्ट वाले सम में आप देख लीजिए कि डिविजर ऑफ 21600 विच इज डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 15, ये आप लोग ट्राई कीजिए। इट्स ऑलरेडी 3 o'clock, और ये पूरा एंटायर स्क्रीन जो अभी मीटिंग रहता है वो शायद 1 hour का ही रहता है पूरा टाइम, तो इन द बिगिनिंग वी लॉस्ट अराउंड 15 minutes, so still we have another class this week on Friday, we'll cover it up on that day as well, but ये last sum है number 3, आप लोग थोड़ा सा try कीजिए, if you are unable to do it I'll show you of course how to solve it. आप लोगों को याद है ना व्हाट वाज डिविजर एंड ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स याद है ना आप लोगों को, डिविजर डिविडेंड क्या था। यस 40 आप बोल रहे हो, 40, पर आस्तिक 40 तो नहीं है, थोड़ा सा और ट्राई कीजिए, 40 तो नहीं होगा। ए आप बोल रहे हो 20, ओके, तो 40 क्यों लिख दिया आपने, ठीक है 20। तो जिन लोगों को डिविजर याद नहीं है, आई जस्ट टेल यू वंस अगेन, अ नंबर दैट डिवाइड्स
into another without a remainder. तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, ये एक सबको पता है होता है, राइट। तो ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिविजर होता है, जो कि पूरा डिविडेंड को डिवाइड, पूरा एंड करने में, पूरा डिविडेंड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। और ये आपका पता है कोशेंट होता है, राइट, कोशेंट। Your two options are right, A and C. Okay, Astik. Okay, let's see. आप बोल रहे हो A और C. हाँ, C is the right, but आप Astik, you could kind of A कैसे सही होगा? आप अगर हमको आपने जो भी किया है पिक्चर क्लिक करके आप अगर बेसिक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. कैसे सी कैन यू नॉट श्योर अबाउट इट, बट सी तो आंसर होगा. हाँ यार, अभी करते हैं इसको, जो भी जैसे हो सकता है, जैसे भी थिंक काइंड ऑफ एक ग्रोथ तो करते हैं अभी, ठीक है. और आज से आई वुड रियली वांट यू टू शेयर योर सॉल्यूशन. मुझे ऐसे ऑप्शन, अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आ गया तो फिर मेरा भी गलत हो सकता है उसमें, फिर एम को समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा यहाँ पे मेरे पास जो सोल्यूशन है, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू. तो इसका जो आपका फैक्टराइजेशन करने के हेलो हेलो ओके. Okay, great. So now let's see. Okay, so the sum was 216, like this one. I was saying कि 216 जो है, that is we know कि 6 cube is 216 into 100. तो इसको हम लोग easily कर सकते हैं. अब क्या होता है इसका 2 into 3 into 2 into 3 into 100 को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब, नहीं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 25 इंटू 4, तो ये लिख सकते हैं, राइट. तो अभी क्या हो गया, अभी क्या होगा, 2 का देख लेते हैं पहले. 2 तो सबसे स्मॉल है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 2 to the power of 5 into 3 1 2 3, तो 3 क्यूब into 5 to the power of 2, राइट. दिस इज इट. ये आप इनका मिल गया, ठीक है. अभी बोला गया है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 10. तो ये बोला गया है कि डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 15. तो इस पे क्या होगा, अगर डिविजिबल बाय 10 है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज वेल, राइट. तो अगर 10 है तो इट विल बी divisible by 2 and 5 as well, but not by 3. 3 से नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 से होगा, मतलब 3 और 5 से नहीं होगा, बट इधर तो 5 से होगा, तो 5 को हम लोग इंक्लूड करते हैं पर 3 को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है. अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
तो बेसिकली डिविजर शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ, जो डिविजर होगा वो ये फॉर्म में होगा, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of x into 5 to the power of y. ठीक है, अभी x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 1 से लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये वाले न्यूमेरिकल में 5 तक, 1 2 3 4 और 5 तक पॉसिबिलिटी है, राइट। और y का क्या हो सकता है, इट कैन ईदर बी 1 और इट कैन ईदर बी 2। तो अगर ये देख रहे हैं हम लोग, तो डिविजर क्या हो सकता है अभी, तो ये एंटायर डिविजर का जो कॉन्सेप्ट है, जो द डिविजर दैट कैन बी नंबर ऑफ डिविजर, बेसिकली जो निकालने के लिए बोला गया है, दैट विल बी 2 into 5, that is 10. So 10 will be the answer. और अगर हम लोग ऐसे देखना चाहते हैं कि अरे 10 होगा कि नहीं सही में, तो इसको हम लोग और एक मेथड से देख सकते हैं, लाइक चेक करने के लिए कर सकते हैं हम लोग। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इट विल बी, देखिए डिविजर क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी 2 to the power of 1 into 5 2 to the power of 2 into 5 1, और हो सकता है 2 to the power of 3 into 5 1, 2 to the power of 4 into 5 1, 2 to the power of 5 into 5 1, और हो सकता है आपका raised hand. Okay, Astik, you have raised your hand. Okay, I have मैम yeah, Astik, अगर you can, टू की मैम yeah, अगर आपने लिखा है ना हाँ जी एक्स बताइए। एलिमेंट ऑफ 1 2 3 एंड 4 4 3 4 5, वाई एलिमेंट ऑफ 1 Yeah, right. एंड 2, Y अगर हम belongs 2 to, की, ये हाँ belongs to, वाई yeah, बिलोंग्स yeah, टू 1 एंड 2, वाई बिलोंग्स right, टू 1 एंड 2। right, तो right. अगर हम एक्स को एक्स की वैल्यू 2 रखें और वाई की वैल्यू 1 रखें, तो ये भी जी, एक तो एक डिवाइजर बन सकता है जो कि हाँ 15 से जी, डिविजिबल नहीं होगा। जो कि 15 से डिविजिबल नहीं होगा, हाँ जी, हाँ वही मैं बता रही हूँ कि कैसे नंबर ऑफ डिविजर आपका 10 होगा, मतलब इधर हम लोग तो इजीली निकाल सकते हैं कि 2 into 5 आपका 10 हो गया, तो नंबर ऑफ डिविजर कैसे आपका, लाइक नंबर ऑफ डिविजर विल बी इक्वल्स टू 10। तो हम लोग इधर से भी देख सकते हैं कि जैसे आपने बताया 2 to the power of 1, और अगर 5 to the power of 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 to the power of अगर 2 कंसिडर कर रहे हैं और 5 to the power of 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एंटायर एक 1 एलिमेंट हो गया, ये पूरा और एक एलिमेंट हो गया, तो ये 3 4 और 5। वैसे ही आपका 5 स्क्वायर के साथ, लाइक 2 to the power of 1 into 5 to the power of 2, ऐसे ही आपका और 5 एलिमेंट्स आ जाता है, सॉरी इधर, ठीक है। आप जी स्क्रीन फॉलो कीजिए, मैं बताती जा रही हूँ। 2 to ओके the power of 3 into 5 to the power of 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर तक ही मतलब उसका वैल्यू हो सकता है, y का वैल्यू, जी ये जी वाले जी कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। एंड फिर जी 2 to the power of 4 into 5 to the power of 2, अगेन 2 to the power of 5 into 5 to the power of 2। सो इधर भी आपका 5 एलिमेंट आ गया एंड इधर आपका 5 एलिमेंट्स आ गया, तो ऐसे भी अगर आप देखोगे तो आपका 10, लाइक देयर विल बी 10 नंबर्स, बेसिकली जो सम था वहां पे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द डिविजर ऑफ, लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ डिविजर्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ डिविजर्स। वही मैम नंबर ऑफ मिसिंग था ना, इसीलिए मैंने 10 और 20 दोनों किया था अच्छा, ओके, डिवाइजर आपने के। इसीलिए कहना, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपने एक्चुअली डिविजर का वो आपने निकाला था, लाइक मैंने आपने खाली ये डिवाइजर, आपने इसको मल्टीप्लाई करके वो किया था, राइट। जी मतलब हाँ मैंने ईच डिवाइजर एलिमेंट निकाले को थे आप खाली। मल्टीप्लाई कर रहे थे, ओके ओके, गॉट इट। ओके, तो ये नंबर ऑफ डिविजर ही है, या ओके राइट। सॉरी तो ये मैम थोड़ा सा टाइप मैं था, नो नो ओके नो, नो ओके मैम प्रॉब्लम, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन है।
ये नंबर ऑफ डिविजर लाइक कितने नंबर्स ऑफ डिविजर बन सकते हैं 120 लाइक 216 100 का कितने नंबर ऑफ डिविजर्स बन सकते हैं which will be divisible by 10 and not by 15 which will be 10 number Okay. of divisors. Okay, ma'am. Thank you. Okay, cool. So apart from that, we have more one, two questions and another we have questions. We also have these two questions. So I would really want वो दो questions तो बहुत easy है. ठीक है. I would really like if anyone could solve these two questions and put the solution in the group. If not, we'll discuss this two again in the next class, which is on Friday this week only. Okay. Since we have like 3:15 already, our like webinar abhi end bhi hone wala hai, so we'll do it in the next class as well. Okay, guys. Anyone have any question up until now, or any other things that you want me to include? Like क्योंकि अभी this week I was planning on doing this numericals and then next class में थोड़ा सा prime factorization जो कि NCERT के book में base करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा again basic होगा. No questions, okay. Okay, no problem आस्तिक, thank you so much क्योंकि हाँ वो number of divisor miss हो गया था. Okay, great. No questions. And other people, okay, and others who were kind of lost or who were not able to understand, you can DM me in the group. Like sometimes we tend to become shy in the class, and we अगर कोई भी doubt रह जाता है, we tend not to ask because of our shyness or because we are unable to kind of ask some questions or something. So you can definitely DM me. No judgments at all. आप लोग काइंडली डीएम कर दीजिए मुझे, तो और ग्रुप में भी आप लोग आपका डाउट्स पूछ सकते हैं. इफ आई एम अवेयर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, इफ आई एम अवेयर अबाउट दैट क्वेश्चन, अगर मुझे आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी.